to the second session of our webinar. The sub-theme of this session is Teacher as a Spiritual Guru. The very word guru fills us, the teachers, with positivity as it renders us the responsibility of being the remover of darkness, someone who helps eliminate the deposits of obliviousness, leading children unveil their real essence. So during the lockdown, the role of teachers as a group is very important as to move the students into their social, emotional, and psychological selves. So, to edify us on our role as a spiritual guru, have an eminent, multi-talented personality, Dr. Kishore Sinha. Dr. Sinha has retired as Assistant Program Director from All India Radio Patna. He has incessantly worked for 31 years in mass media. He has written and produced many serials, documents, and plays for radio, television, and theatres. He is also a great teacher. He has written many books. To name a few, an autobiography, Ek Bande Ki Diary, Reiki, which is a kind of spiritual business therapy, Samayik Hindi Nibandh, a collection of essays, and the list is actually very long. He has been conferred many awards. To name a few, National Public Service Broadcast Award for the features Sankalp Jyoti by Prasar Bharati, Information and Broadcasting Ministry, Government of India. Anil Kumar Mukherjee Award for contribution in theatre by Bihar Art Theatre in 2004. Bihar Gaurav Samman, and yet again the list is long. So now I request Dr. Kishore Sinha to take the charge of this session. Over to Dr. Kishore Sinha. Dear friends, good morning, namaskar. We all are much aware about the role of a teacher because a teacher is a mentor, a creature. He creates not only knowledge, but the truth, happiness, positive attitude into the student's mind and in soul as well. और कहा भी गया है गुरु को ईश्वर से भी ऊपर मान के गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए बलिहारी उन गुरु को जिन गोविंद दियो बताए. Adhyatma is not related with any religion, race, caste and creed. It is a learning process to generate oneself as various energy manifestations takes consistent follow through, with the bottom line being a total dedication to full self-realization in one lifetime. Actually, it is a way of life. Adhyatma means the nature of the individual self or selfhood, which is the presence of the supreme reality in everybody as the indwelling self. It means the entity which as the indwelling self exists in the body called Atma. By making the body its place of dwelling and within the ultimate analysis is the supreme. Adhyatma is also the discipline of knowledge that leads to spiritual wisdom and eventually to moksha or call liberation. It is considered to be the best kind of knowledge. This knowledge is Adhyatma, pertains to the self and deals with the discernment between the self and the non-self. Adhyatma is the knowledge concerning inner self and the path to be adopted in order to attain the knowledge of the inner self. This knowledge is considered to be eternal. Adhyatma also refers to the exposition or explanation about the nature of the supreme reality. Once
Leaning towards the study of the scriptures and one's effort to understand one's true nature, it also means complete surrender to God with total abnegation of the ego. Anything that is related to oneself, that is one's body, mind, vital energy, is also called Adhyatma. It also denotes suffering created in oneself that arises in one's body and mind and is one of the three kinds of sufferings a living being can get. The other two being adhibhautikta, that created by other living beings, and adhidevikta, that created by natural or cosmic forces. तो धर्म और अध्यात्म ये दो ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनसे हर आदमी का साबका पड़ता है, और दोनों में कई बार भेद करना और उनके बारे में जानना कुछ अधूरा सा लगता है। लेकिन ये हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसके अंदर विकास करने का एक रास्ता है। खुद के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए इन दो शब्दों का अनेक रूप में प्रयोग होता रहा है। हालांकि समय के साथ इनके अर्थ मायने बदल जाते हैं, यहाँ तक कि उनके अर्थ में अनर्थ या दूसरे तरह के अर्थ भी भर दिए जाते हैं, और ये अज्ञान के कारण होता है, लोग जानते नहीं है, स्टडी उनकी अधूरी होती है, इस वजह से होता है। और इसके चलते जो हम चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, वो सच्चाई हम नहीं जान पाते, हम तक वो सच पहुंच नहीं पाता है। लेकिन उस सच तक पहुंचने का रास्ता हमारे विद्वान, मनीषी, चिंतक, दार्शनिक, साहित्यकारों और उनके कहे हुए शब्दों से होकर जाता है, जो इन शब्दों में वास्तविक अर्थ भरते हैं और हमें उस रास्ते तक पहुंचाते हैं। जैसे हम सभी नारियल का फल उसको देखते हैं, ऊपर उसके ऊपर एक आवरण होता है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। उसको तोड़कर ही हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं, तब हमें वो प्राप्त होता है, वो मीठी गरी प्राप्त होती है। तो अस्तित्व तो उस नारियल के छिलके का भी है, लेकिन असली मिठास उसके अंदर। तो उसी तरह से संप्रदाय या धर्म ये अध्यात्म का एक बाहरी स्वरूप है, और अध्यात्म उसकी अंतर की दृष्टि। और ये बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही थी, और इस बात को जानते थे स्वामी विवेकानंद कि पूरब और पश्चिम की सभ्यताएं एक दूसरे की पूरक हैं। इसलिए उन्होंने हमेशा वेदों के विश्वव्यापी मानवीय स्वरूप पर बल दिया और सभी धर्मों में व्याप्त एकता के स्वरूप पर जोर दिया। इस तरह अध्यात्म और धर्म की जब हम बातें करते हैं तो हमें समझना होगा कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। विज्ञान की कोशिश है कि लोगों का भौतिक जीवन बेहतर हो, और अध्यात्म का प्रयास है कि अपनी सकारात्मक शक्ति को जगाकर इंसान सच्ची राह चले। विज्ञान और अध्यात्म के मिलन से एक तेजस्वी नागरिक का निर्माण हम करते हैं, वो नागरिक बनता है। तर्क और युक्ति दोनों विज्ञान और अध्यात्म के मूल में, यदि जीवन के ये दो पहलू आपस में मिल जाएं तो हम चिंतन के उस शिखर तक पहुंच सकते हैं जहां उद्देश्य और हमारा कर्म दोनों एक हो जाते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी भली भांति ये बात जानते थे कि जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है, और इसमें जो हमारी खुशियां हैं वो भी अनिश्चित है। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि हम अपना जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, बहुत सरल सीधी जिंदगी हमारी चल रही थी, हमारा काम से चल रहा था, और अचानक ये कोरोना वायरस के आने के चलते सबकी जिंदगियां बदल गई। लेकिन क्या ऐसे में हम ये सोच सकते हैं कि ये हमेशा ये रहने वाला है? ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये खुशियों के बाद ये जो दुख और कष्ट का समय आया है, ये भी नहीं रहेगा। जिस तरह से खुशियां अनिश्चित है, उसी तरह से ये दुख भी अनिश्चित है। ये भी एक दिन जाएगा और खुशियां आएंगी। तो राधा कृष्ण जी का ही मानना था कि मृत्यु एक अटल सत्य है,
जो गरीब अमीर जाति धर्म देख करके नहीं आती, ये किस प्रकार का भेद नहीं करती। सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंदर के अज्ञान को समाप्त करता है। और ये कैसे होगा? जैसे हम आज कर रहे हैं। आज हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित हो गई हैं। बहुत सारी चीजें थी जो हम, जब हमारा जीवन सरल था इस कोरोना काल और लॉकडाउन पीरियड के पहले, हम उससे वंचित हो गए हैं। वो अपने घरों में बंद हैं, हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम थिएटर नहीं जा रहे हैं, हम मॉल नहीं जा रहे हैं, हम रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे हैं, हम अपने मनपसंद की चीजें नहीं खा पी सकते। जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसी से काम चलाते हैं। तो क्या हमारा जीवन समाप्त हो गया? नहीं, हमारा जीवन तो वैसे ही है, बल्कि जीवन में और सादगी आ गई। पहले हम जिस आडंबर में जीते थे और हमें लगता था कि ये भी एक जीवन है और इसको भी जीना चाहिए, वो अनावश्यक खर्चों में कमी आ गई। तो हमारे जितने साधन हैं उसमें हम अभी काम चला रहे हैं। तो ये सादगीपूर्ण और संतोष के साथ जो जीवन आज हमें चाहे जिस कारण से भी मिला है, उस जीवन को हम जी तो रहे हैं और हमें लगता है कि हम बेहतर तरीके से जी रहे हैं। इसी कारण डॉक्टर राधा कृष्णन ने भारतीय नैतिक मूल्यों को समझा और उसके अनुरूप उन्होंने ये जाना कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों को आदर देना जरूरी है। सभी धर्मों के लिए समता का भाव भी यहाँ की मिलीजुली संस्कृति की विशिष्ट पहचान। इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को समझा और उसके काफी नजदीक वो गए। डॉक्टर राधाकृष्णन पूरे विश्व को एक विद्यालय, एक शिक्षा संस्थान मानते। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव बुद्धि का सदुपयोग किया जा सकता है। इसलिए विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन हमें करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी व्याख्याओं, अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वो अपने छात्रों को भी देते थे। वो जिस भी विषय को पढ़ाते थे पहले खुद उसका अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वो अपनी शैली में सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। तो there are a lot of persons who keep criticizing other religion and communities. It is not a correct attitude. You must love and have respect for all religion and communities, whether you accept them or not. Even if you do not accept God, no matter, your conduct should be good. Mahatma Buddha did not accept the existence of God. His fundamental principles was truth and non-violence, ahimsa. Mahatma Buddha was the son of a king. So he said, neither I want kingdom nor heaven, nor rebirth. I only want to remove the sorrows and sufferings of all human beings and creatures during this lifetime. A big thought. And the Buddha Dharma crossed the boundaries of India and spread in all neighboring countries. Jesus Christ also says, truth and love is God. Love your neighbor as you love yourself. Islam has also some excellent principles, like Roza and Namaz, prayer. They do believe in one God, Allah only. तो हमारी भारतीय चेतना का ये मुख्य आधार है अध्यात्म। अध्यात्म को जीवन से हटा दीजिए तो जो बचेगा वो हमारी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कभी भी हितकर नहीं होगा और हमारी चेतना को नष्ट कर देने वाला। इसलिए कुछ चिंतक और दृष्टा इससे आगे जाकर खुद से उस पर आचरण करने में जुट गए। महात्मा गांधी ने
जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार, कथनी और करनी सब एक थे। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए उस पर आचरण करने का साहस भी किया। महात्मा गांधी का चिंतन उनके जीवन के व्यवहारिक पक्ष को दिखाने के साथ साथ उनकी आंतरिक चेतना को भी उजागर करने का एक जरिया है। महात्मा गांधी की इसी आंतरिक और बाहरी चेतना की समानता के चलते अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को यह विश्वास करना भी मुश्किल होगा कि महात्मा गांधी की तरह हाड़ मांस का कोई ऐसा भी मानव धरती पर जन्मा था। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि बापू के भौतिक जीवन में उनकी आध्यात्मिक चेतना की सुगंध है। इसलिए महात्मा गांधी को समझने के लिए राजनीतिक लिबास में बैठे उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व को समझना जरूरी है। अहिंसा, सत्याग्रह, खादी, स्वदेशी, अनशन, ब्रह्मचर्य, स्वावलंबन, स्वच्छता, समता, अपरिग्रह जैसे सिद्धांत और प्रतीकों को गांधी जी ने अपने जीवन में साकार होते और उनके जीवन में साकार होते देखा जा सकता है। और आदर्श को अपने जीवन का यथार्थ बनाने के कारण ही ये महात्मा कहलाए। हालांकि बापू के साथ महात्मा शब्द का प्रयोग हमें उनसे दूर होने का एहसास कराता है, और कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि महात्मा थे इसलिए ऐसा कर पाए, उनमें कुछ विशिष्ट गुण था इसलिए वो ऐसा कर पाए। लेकिन नहीं, हमें ये समझना होगा कि वे भी हमारी तरह एक आम आदमी थे, इंसान थे। उनमें भी एक आम इंसान की तरह कमियां और विसंगतियां थी, लेकिन अपनी उन कमियों को समझकर उन्हें दूर कर उन्होंने महान आध्यात्मिक सिद्धांतों को जिस तरह से जी कर दिखाया, उसके कारण वो महात्मा बने। महात्मा गांधी की दृष्टि में जो कुछ अशुभ है, असुंदर है, अशिव है, असत्य है, वो सब अनैतिक है। जो शुभ है, जो सत्य है, जो शुभ है, वही नैतिक है, वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। जो सुंदर है उसे शिवमय होना चाहिए, यानी सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने ये माना है कि सदा से मनुष्य अपने शरीर को, अपने भूख को, अपने स्वार्थ को, अपने अहंकार को, अपने पेट को, क्षुधा को, भूख को और अपने प्रजनन को महत्व देता रहा है। पर जहां ये प्रवृत्तियां मनुष्य में हैं जिनसे वो प्रभावित होता है, वहीं उसी मनुष्य में दया भी है, त्याग भी है, करुणा भी है, प्रेम और उदारता भी है, निस्वार्थता भी है, और खुद को उस व्यापक चेतना या सत्ता में लय करके अहम भाव का त्याग करने और विराट में अपने को समाहित कर देने की भावना थी। तो ये सब बातें ऐसे जो भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में साकार होते हम देख सकते हैं। गांधी जी ने एकांत प्रियता को अपनी आध्यात्मिक उन्नति का मूल माना था, और आध्यात्मिक या अध्यात्म को समझने के लिए, स्पिरिचुअलिज्म को समझने के लिए ये एकांत प्रियता को समझना बहुत जरूरी है। आज जब कोरोना वायरस ने सबको अकेला रहने पर मजबूर कर दिया है, हम एक घर में रह के भी एक साथ नहीं रह सकते। हमें लगता है कि नहीं, हमें एक दूरी बना के रहनी चाहिए। सरकारें भी कहती हैं, मेडिकल साइंस भी कहता है कि भले ही हमें कोरोना ना हो लेकिन हम एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। ऐसे में बापू ने जो एकांत प्रियता का सिद्धांत दिया उसे अच्छी तरह समझा जा सकता है अभी के परिप्रेक्ष्य। वे कहते हैं, अकेलापन कई बार अपने आप से अनेक सार्थक बातें करता है। वैसी सार्थकता भीड़ में या भीड़ के चिंतन में नहीं मिलती। जो व्यक्ति आत्मिक तौर पर कमजोर है वो हमेशा भीड़ का आग्रही होता है, उसे महफिलों की तलाश होती है। लेकिन गांधी एकांत में आत्मचिंतन और स्वयं को समझने के प्रयास में तल्लीन रहा करते थे। कितनी बड़ी बात है, आत्मचिंतन और स्वयं को समझने का प्रयास। हमें कहाँ इतना
अवकाश मिलता है, फुर्सत मिलती है कि कभी हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम क्या चाहते हैं, हमारी खुशियां किस में हैं, और हमने क्या किया जीवन में, हमने क्या प्राप्त किया, कहाँ हम जाना चाहते हैं। लेकिन जब हम एकांतवास में होते हैं तो इन चीज़ों की भी तलाश होती है और इनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बापू कहते थे, जो कला आत्मा को आत्मदर्शन की शिक्षा नहीं देती, अपने को जानने की शिक्षा नहीं देती, जो कला का मतलब शिक्षा, वो कला नहीं है, वो शिक्षा नहीं। उनकी नज़र में वे सभी प्रतिभाएं और कौशल अर्थहीन है जो आध्यात्मिक यात्रा पर न ले जा सकते। वे भौतिक उड़ान को महत्व न देते हुए अंतर की गहराई में उतरने को तवज्जो दिया करते थे। उनकी आंतरिक चेतना समाज और व्यक्ति से जुड़ी थी। इसी कारण संत स्वभाव के बावजूद उनमें राजनीतिक सक्रियता भी देखने को मिलती है। आध्यात्मिक समाजवाद के पक्षधर महात्मा ने इतिहास की आध्यात्मिक व्याख्या की है। ये उतना ही पुराना है जितना पुराना व्यक्ति की चेतना में धर्म का उदय। उन्होंने केवल बाह्य क्रियाकलापों या भौतिकवाद को सभ्यता संस्कृति का वाहक नहीं माना, बल्कि गहन आंतरिक विकास पर बल दिया। रचनात्मक संघर्ष में असीम विश्वास रखने वाले गांधी जी मानते थे कि जो जितना रचनात्मक होगा स्वतः ही उसमें उतनी संघर्षशीलता के गुण आएंगे। ये सारी बातें अभी देखने को मिल रही हैं। रचनात्मक यानी क्रिएटिव होना। घर पे सोशल साइट्स पे तमाम देखते हैं, लोग पोस्ट करते हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं, तरह तरह की क्रिएटिविटी की जा रही है, तरह तरह के इंडोर गेम्स खेले जा रहे हैं। और जो लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है कि वो घर पे रह के वो साहित्य साधना और ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो कभी भागदौड़ की जिंदगी में उन्हें करने को नहीं मिला। तो स्वतंत्र राष्ट्र और यहाँ पर दूसरे राष्ट्र जितने हैं, अब तो ये पूरा ग्लोबल है और कहीं कोई दूरी नहीं है, लेकिन सब मिलकर एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम अभी कायम कर सकते हैं और अभी हम देख रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उन्होंने अपनी पुस्तक अकाल पुरुष गांधी में एक बात लिखी थी जो मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ। गांधी जी ने एक बार कहा था कि मेरा सब कुछ ले लो मैं रहूंगा, मेरा सब कुछ ले लो मैं रहूंगा, हाथ काट लो, आंख और कान ना रहे तब भी रहूंगा, सिर जाए तब भी कुछ पल रह जाऊं, पर ईश्वर गया तो मैं उसी दम मरा हुआ ही हूं। ईश्वर गया का मतलब हमारी आत्मा, हमारा सेल्फ इनर, अगर वो चला गया तो फिर मेरे पास कुछ नहीं बचा। कितनी बड़ी बात थी। तो गांधी जी डेडिकेटेड हिज लाइफ टू डिस्कवरिंग एंड परसुइंग ट्रुथ और सत्य एंड कॉल्ड हिज मूवमेंट सत्याग्रह, which means appeal to, insistence on, or reliance on the truth. Some of these ideas are found not only in traditions within Hinduism, but also in Jainism or Buddhism, particularly those about non-violence, vegetarianism, and universal love. But Gandhiji's synthesis was to politicize these ideas. Gandhiji described the term God not as a separate power, but as the being, Atma, of the Advaita Vedanta tradition, a non-dual universal that pervades in all things, in each person, and all life. This to Gandhi meant the unity of God and humans, that all beings have the same one soul, and therefore equality, that Atma exists and is same as everything in the universe. Ahimsa, non-violence, is the very nature of this Atma. Gandhiji wrote, there must be no impatience, no barbarity, no insolence, no undue pressure. If we want to cultivate a true spirit of democracy, we cannot afford to be intolerant. गांधी जी की तरह ही महर्षि अरविंद आध्यात्मिक क्रांति की पहली चिंगारी।
अरविंद ने भारतीय शिक्षा चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये हम सभी जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले घोषणा की कि मानव सांसारिक जीवन में भी दैवी शक्ति प्राप्त कर सकता है। ये मानते थे कि मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए और अन्य इंसानों की सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस शब्द उन्होंने दिया, सुपर माइंड, और स्वयं को अति मानव सुपरमैन में परिवर्तित कर सकता है। ये शिक्षा के द्वारा संभव है। आज की परिस्थितियों में जब हम अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को भूलकर भौतिकवादी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं, अरविंद महर्षि की शिक्षा में सही दिशा दे सकती है। उनके दर्शन का लक्ष्य उदात्त सत्य का ज्ञान यानी रियलाइजेशन ऑफ द सबलाइम ट्रूथ है, जो समग्र जीवन दृष्टि यानी इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ द्वारा प्राप्त होता है। समग्र जीवन दृष्टि मानव के ब्रह्म में लीन या एकाकार होने पर विकसित है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा मानव अतिमानव सुपरमैन बन जाता है, यानी वो सत, रज और तमस इनका त्याग करता है, इससे ऊपर उठ जाता है। और अतिमानव जब बन जाता है तो वो सभी प्राणियों को अपना ही प्रतिरूप समझता है। और जब इस तरह की स्थिति आती है तो उसमें एक डिवाइन पावर ये पैदा होती है। अरविंद ने मस्तिष्क, माइंड की धारणा के बारे में कहा है कि मस्तिष्क के विचार कई स्तरों पर होते हैं, चित्त, मनस, बुद्धि और अंतर्ज्ञान, और इनका धीरे धीरे विकास होता है। अंतर्ज्ञान में व्यक्ति को अज्ञान से संदेश प्राप्त होते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत। अरविंद ने अंतर्ज्ञान को विशेष महत्व दिया। अंतर्ज्ञान के द्वारा ही मानवता प्रगति की वर्तमान दशा को पहुंची। इसलिए अरविंद का मानना है कि शिक्षक को अपने शिष्य की प्रतिभा पर रूटीन वर्क लाद कर उसको दबाना नहीं चाहिए। आज की शिक्षा पद्धति से महर्षि का संतोष इसी कारण था कि इसने विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास का अवसर नहीं दिया। शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास के लिए उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो अरविंद महर्षि इस प्रकार की शिक्षा पद्धति चाहते थे जो विद्यार्थी के ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करे, विद्यार्थियों की स्मृति, निर्णय शक्ति और सृजनात्मक क्षमता का विकास करे। और इसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही थी कि माध्यम हो उसकी मातृभाषा। ये कारण राष्ट्रीय विचारों के कारण भी था, क्योंकि वो शिक्षा पद्धति को भारतीय परंपरा के अनुसार ढालना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने शिक्षा के माध्यम से पुनर्जागरण का संदेश भी दिया। उनके अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विकासशील आत्मा के सर्वांगीण विकास में सहायक होना और उसे उच्च आदर्शों के लिए प्रयोग के लिए सक्षम बनाना। यही विचार महात्मा गांधी के भी थे। शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में भी महर्षि अरविंद ने काफी कुछ कहा, और वो चाहते थे कि अनेक विषयों का सटीक ज्ञान कराने के बजाय विद्यार्थियों को कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स की स्टडी ही कराई जाए। वे भारतीय इतिहास और संस्कृति को पाठ्यक्रम का भिन्न अंग मानते थे, और वो चाहते थे कि ये चाहे विज्ञान का विद्यार्थी हो, चाहे साहित्य का विद्यार्थी हो, साहित्य के विद्यार्थी को ही विज्ञान पढ़ना चाहिए और विज्ञान के विद्यार्थी को भी इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र इसकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसके लिए वे अनुशासन को महत्व देते थे। ये सारा कुछ अगर विद्यार्थियों में अच्छी आदतें ना हो, अनुशासन ना हो, तो ये संभव नहीं है। और इसे वो मेथड ऑफ सजेशन कहते हैं, जिसमें गुरु व्यक्तिगत आदर्श जीवन स्वयं धारण करके और महापुरुषों के उदाहरण के द्वारा विद्यार्थियों को इस नैतिक विकास के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा महर्षि अरविंद ने कहा, द डिवाइन इज इन हिज एसेंस इन्फिनिट and his manifestations too is multitudinously
इन्फिनिट। हो सकता है हम जिस तरह से भगवान को मानते हैं वो उस अवस्था में ना हो सकता है कि वो मानव आकार में हो, या हो सकता है कि वो कॉस्मिक एनर्जी हो, या ब्रह्मांड की अपार शक्ति हो, या फिर हम जो सोच भी नहीं सकते, जो कल्पना भी नहीं कर सकते, उसी रूप में हो। लेकिन चाहे हम भगवान कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, चाहे जो भी कहें, लेकिन वो शक्ति है तो जरूर, और हम इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। इसलिए विज्ञान ईश्वर से अलग नहीं है, और हमारे ब्रह्मांड के हर वस्तु एक दूसरे की पूरक है। यही वैज्ञानिक अध्यात्म। हमने कभी इस बात पर सोचा है कि वो जो हम नाम देते हैं, गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वो शक्ति क्या है? हम में से हर व्यक्ति, हर बच्चा जो नया जन्म लेता है, वो आकार, प्रकार, रंग, रूप में एक दूसरे से भिन्न होता है। यहाँ तक कि अरबों खरबों इंसानों, और चाहे दुनिया के किसी भी देश में वो पैदा ले, उसके हाथ की रेखाएं कभी नहीं मिलती, सबकी रेखाएं अलग। आखिर ये किसने बनाया, किसने किया? इंसान ने तो नहीं किया। तो कोई शक्ति तो है जिसने इसे बनाया। तो कहने का मतलब ये कि ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को विद्यार्थियों में इस स्पिरिचुअलिज्म को बचपन से डालने की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, द मीटिंग ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट in the moment of true initiation is called the meeting of two mind streams. When the student is ready, so will be the teacher and the teaching. This is a good way to describe. There should be no doubt left in our minds that we have made the real thing. An authentic spiritual teacher of an authentic lineage, offering authentic teachings. At this crucial time, when the stress and tension placed on human beings is so great by virtue of cultural imperatives, I personally feel that I return to the traditional methods of teaching ethics and healing relating to human conduct are a necessity if civilization is to survive and become stabilized. From very beginning, our true nature and existence, or our mind stream, is totally without fault or imperfection, perfect and complete like a sphere of crystal. Truly, it is on this table that we do most of our interaction with the universe around us. All things are energy. Myself, the pen, paper with which I am writing, this house, this country, India, this world, the solar system, we certainly can perceive of it as energy. In our physical form of emanation body, in actual fact, although it may seem so, we interact very little. It is on the energy level where our pranavayu, energy exists, that the most interaction takes place. If our price time mind becomes obscured, the play of the energies will not be in total harmony, and discord will occur. Because we carry all of our karma within our mind stream. The negativity of that karma causes an imperfection in the arising of our energy field. The energy field then causes an imperfection in our physical body. These must be corrected by ourselves for the elevation of the negative karma that we ourselves have created. Every human being, every planet and animal has a specific vibrations. If we are cognizant of their specific vibrations, then we may administer
that specific herb or animal extract to correct the imperfect vibration and thus balance the vibrations. It is incumbent upon teacher to enact positive actions and to set aside our negative actions and intent. A teacher do this by the practice of positive acts such as kindness and generosity, and they refrain from causing pain, unhappiness, and suffering to other beings. It is imperative that we first examine what the aim of our life will be. We all know that we owe a debt to our family, society, and our country, and the human race itself, for we are not separate, but part of this dynamic whole. We are a part of the life that exists in this world system. Therefore, it is natural that we realize this debt and repay it by service. Conclude with renowned writer, philosopher, and speaker J. Krishnamurti saying, I maintain that truth is a pathless life, and you cannot approach it by any path whatsoever, by any religion, by any sect. That is my point of view, and I adhere to that absolutely and unconditionally. Truth being limitless, unconditioned, unapproachable by any path whatsoever, cannot be organized. Not should any organization be formed to be or coerce people along a particular path. This is no magnificent deed because I do not want flowers. And I mean this. The moment you follow someone, you cease to follow truth. I am not concerned whether you pay attention to what I say or not. I want to do a certain thing in the world, and I am going to do it with unwavering concentration. I am concerning myself with only one essential thing, to set man free, and not to found religions, new sects, not to establish new theories and new philosophies. So friends, this is all from my side. Thanks to St. Xavier's College of Education family giving me this wonderful opportunity. उम्मीद है कि मेरी इस कोशिश ने आपके इस बहुत महत्वपूर्ण अभियान में थोड़ा बहुत जोड़ा होगा. बहुत बहुत आभार और धन्यवाद. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Now we Thank you so much, sir. questions. My first question is, to bring peace in society and in world, should we not include spirituality in college as a compulsory subject, just like we have moral science in school? तो मैं ये कह रहा था, बिल्कुल सही बात है कि स्कूलों में जिस तरह से नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, उस तरह से कॉलेज में भी होना चाहिए, सब्जेक्ट के तौर पर, विषय के तौर पर, अनिवार्य शिक्षा के तौर पर. लेकिन होता क्या है कि हम जो पाठ्यक्रम हम जिस रूप में तैयार करते हैं, इवन जो बच्चों के लिए जो मोरल साइंस का सिलेबस होता है, उसमें मैंने पाया है कि बहुत सावधानी से चुनाव नहीं होता है उन कथाओं का. जो कथाएं हमारे जीवन में ज़्यादा महत्व रखती हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती हैं, तो उन कथाओं का, उन घटनाओं का या उन महापुरुषों के बारे में सही होता है. और कई ऐसे पक्ष मेरे ख्याल से पढ़ाई तो हर छोटे से लेकर के, बच्चों से लेकर के और बड़ों तक स्कूली शिक्षा हो, चाहे विद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन शिक्षा हो, सब में ये जरूर. तो मैं वही कह रहा था कि ये गांधीयन फिलॉसफी को व्यवहारिक जीवन में, गांधीयन फिलॉसफी को आध्यात्मवाद से या स्पिरिचुअलिटी से आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें व्यवहारिक जीवन का जितना भी ज्ञान है वो सब आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाता है. तो ये स्कूली शिक्षा ही नहीं, बल्कि कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में भी गांधीयन फिलॉसफी जरूर पढ़ाया जाना चाहिए. समय की पाबंदी को देखते हुए अभी हम लोग और प्रश्नों को नहीं आगे कर सकते हैं, इसलिए किशोर सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग?
बस अंत में मैं थोड़ा सा यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आपका प्रयास है, अभी तो खैर ऑनलाइन चूंकि मजबूरी है कि घर में रह के हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, लेकिन ये इस तरह के सेमिनार और इस तरह वेबिनार, उसको जो भी कहें, ये पीरियड हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन तब भी इससे आप बहुत दूर दूर बैठे लोगों से जुड़ जाते हैं। तो इस तरह के सीरीज चलाए जाने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ी आपने कोशिश की है, और इस कोशिश में हम सब आपके साथ रहे और कामयाब आपकी ये कोशिश हुई, इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी आपको मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू। Smita ma'am, please propose the vote of thanks. Respected Professor Dr. Kishore Sinha, thank you for your insights into this important topic that I know affects all of us present here. You have clearly researched the subject. Your inputs are especially helpful to us when we are confined inside our house amidst the feeling of fear, anxiety, and depression. Thank you once again for this meaningful session, as it provided all of us much needed help. I would also like to thank the participants for their enthusiasm and active participation in the session. एक बार पुनः आप सभी को बहुत बड़ी धन्यवाद. We have reached the end of this session. अब हम लंच ब्रेक के बाद वापस 2 बजे वापस आएंगे नेक्स्ट सेशन के लिए. Thank you everybody.